everyone, welcome to my channel. So today is Design Practicum main house at IIT Mandi, where BTech students are going to show their engineering models by using CAD, 3D printing and various fabrication techniques. So this DP lab is a part of their courses, and I will be sharing some highlight from the events. So see them, like, share and subscribe. Rotational motion provided by this motor is converted into linear motion using this linear rail gauge and this screw. With this we can achieve flow rate of in precision of milliliter per minute. Pump is basically used anywhere where constant flow rate is required, like in hospitals. But syringe pumps used in hospitals have high flow rates. Ours has been specifically made for synthesis of nanomaterials. तो उसके सिमुलेशन करते हैं तो मैं इसके अंदर Design of acoustic radiation is made this device. So let's see what they made, what their future perspective is. So let's see. ओके सो हमारा एंड गोल ये है कि लाइक इन मेडिकल फील्ड और इन केमिकल रिसर्च फील्ड अभी हम जो है कोई भी सैंपल का टेस्ट करते हैं तो टेस्ट ट्यूब का यूज़ करते हैं एंड उसमें हमें बहुत अमाउंट ऑफ सैंपल चाहिए होता है प्लस टेस्ट ट्यूब। तो उससे अगर हम लाइट पास करते हैं तो सैंपल तो कुछ लाइट एब्जॉर्ब करता है या एट द सेम टाइम जो टेस्ट ट्यूब है वो भी कुछ अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है एंड बिकॉज ऑफ दैट सब एरर आ जाता है। वो हवा में लेविटेट होगा एंड उसका फिजिकल इन्वायरमेंट से कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं होगा तो लाइट जो है वो डायरेक्टली उस पार्टिकल पे पास होगी एंड डायरेक्ट फोटो डायोड उसे डिटेक्ट करेगा तो एरर के चांसेस कम होते हैं। प्योर क्रिस्टल्स होते हैं उनकी टेस्टिंग कर रही है हमें, कुछ हाईली रिएक्टिव केमिकल सब्सटेंसेज होते हैं उनकी टेस्टिंग करनी है तो हमें टेस्ट ट्यूब का यूज़ करेंगे तो केमिकल रिएक्शन होने के चांसेस हैं। बट अगर हम हवा में करेंगे तो केमिकल रिएक्शन होने के चांसेस बहुत कम है प्लस हमें बेटर रिजल्ट है। तो हम चाहते हैं कि इसका आगे फ्यूचर स्कोप यही है कि वो मेडिकल फील्ड में बहुत अच्छा यूज़ हो सकता है इसका क्योंकि हमें कम अमाउंट ऑफ सैंपल लगेगा, एक छोटे से ड्रॉपलेट से हमारा पूरा काम हो जाएगा एंड प्लस एरर के चांसेस कम हो जाएंगे। And this project name is Design and Fabrication of Low Cost 11. Okay, so this is the project of basically group physics for DP project. So basically what we have made is a low cost tube furnace and tube furnace basically हम यूज़ करते हैं नैनो मटेरियल के सिंथेसिस के लिए एंड अगर आपको पता हो तो फिर नॉर्मल जो ट्यूब फर्नेसेस आते हैं उनका प्राइस कुछ 3.5 लाख 4 लाख कई बार 8 लाख तक मिलता है। बट ऑन दी गुड साइड हमने ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट सिर्फ 30,000 बनाया विच कंसिस्ट ऑफ एक हमारे पास इंसुलेशन के लिए सिरेमिक वुड एंड उसके अंदर रिफ्रैक्टिव ऑप्टिक्स एंड ट्यूब के अंदर जाती है क्वार्ट्ज बोर्ड के अंदर हम डालते हैं नैनो मटेरियल आप लोगों के आगे जाती है। The furnaces in the market are 3 times larger than these furnaces. So we try to make it as small as we can as to show how small can be handled. For the future we are trying to encourage fabrication chamber as this material is carcinogenic so we will try to make some fabrication chamber as this tube can also be promoted to an energy environment by applying flames on both sides and supplying the gas flow of nitrogen and argon. We can also provide the inert environment for the further reactions. ओके So hi everyone, this is and this is something response people. So let's see what they made and what is their future perspective. Let's see. This is actually a lab which is
first one would be the physiotherapy activity, in which if you hold on tight, there is an app for this in which we have certain kind of buttons. So when we click on grip, it will be doing physiotherapy unless and until we So this is automatic. yeah, it's automatic. And how it will stop, like it will automatically by timer is there something? No, If any patient like have like hand pain, so how to stop immediately? Like actually this is for just for physiotherapy, and for tremor detection we have another mode called auto mode, in which when the hands shakes, it automatically identifies, and when it tightens the hands, and when the shaking stops, then it releases the hand. That it decreases the frequency of the tremors. after the hand. Yeah. जो रशियन एयरक्राफ्ट है मिल्की 17, उसके अंदर वर्टिकली स्ट्रैक्ड पीसीबीज होती हैं उस टेल के सेक्शन में, जो कि हमने यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट किया। ठीक है, आप वो पीसीबीज का जो वो है हमारा पूरा एरिया, वो आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो ऐसी वर्टिकली स्ट्रैक्ड पीसीबीज हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हीटअप हो जाती है। अब उन पीसीबीज को हमको कूल डाउन करना है एयरफोर्स का फाइटर जैसे। ठीक है, ये एक रशियन मेड एयरक्राफ्ट है, तो रशिया का जो एम्बियंट टेम्परेचर है वो ऑलरेडी बहुत कम होता है, तो दे डजंट हैव एनी कूलिंग मैकेनिज्म इन दैट एयरक्राफ्ट। तो हमारी अब इंडिया में हम जब एक्सपोर्ट करते हैं इंपोर्ट करते हैं सारी चीज़ों को, तो इंडिया का तो एम्बियंट टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो जिस वजह से इसका जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा ऊपर हाई तक चला जाता है। तो वी वांट अ कूलिंग मैकेनिज्म जो कि इस पीसीबी इसको पूरा ठंडा करे, इस पूरे सिस्टम को हमारी पीसीबी जो है उनको ठंडा करे, पूरा को कूल डाउन करे। नाउ व्हाट कंस्ट्रेंट वी हैव, वी वांट टू मेक अवर सॉल्यूशन इन दैट वे सो दैट इट कैन फिट इजली इन दैट पार्ट, क्योंकि हमारे पास स्पेस बहुत ही कम है। तो हमने एक ऐसा कूलिंग मैकेनिज्म बनाया है जो कि उस पार्ट में अच्छे से फिट हो जाए। दूसरा मेन दिक्कत ये थी कि पीसीबी इज वर्टिकली स्टैक्ड है, तो नॉर्मली क्या अभी तक होता है कई जगह पर कि वो लोग डायरेक्टली हीट सिंक यूज़ कर देते हैं, बट यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास 2 सेंटीमीटर का गैप है। जिसके बीच में जो गैप है जो आप वहाँ पे देख सकते हैं वो 2 सेंटीमीटर का है। This is ramp pump. Okay. In this we use the flow energy of water to lift the water to a higher altitude without using any kind of external power or electricity. पाइप के जरिए आएगा फ्लो है, जो काइनेटिक जो हमें स्लोप है, स्लोप में वो काइनेटिक एनर्जी गेन करता है। काइनेटिक एनर्जी गेन करके ये जो मतलब वन साइडेड वॉल्व हैं इनमें ओपन बंद होते हैं। जब फ्लो कम रहता है तो ये ओपन रहेंगे, बट जब फ्लो बढ़ता है तो ये झट से एकदम से बंद होते हैं, जो कि मतलब उसमें मतलब हैमर इफेक्ट क्रिएट करते हैं। जो मतलब पानी जो इतनी देर से फ्लो हो रहा था वो कहीं से तो जाएगा, थोड़ा प्रेशराइज करता है, तो ये आगे जो वन साइडेड वॉल्व है ये आगे की तरफ ये प्रेशराइज करता है। जो यहाँ पे एयर चैम्बर है, एयर चैम्बर के अंदर मतलब एयर कंप्रेस होती है, जो मतलब यहाँ पे रुका, आगे प्रेशराइज करके उसने एयर को प्रेशराइज किया, और ये वन साइडेड वॉल्व है तो पानी वापस नहीं जाता। जो प्रेशराइज्ड एयर है वो पानी को फिर आगे पहुँचाती है, पीछे तो जाएगा नहीं, आगे जाएगा, आगे जाके ऊपर पहुँच जाता है पानी को। ये साइकिल रिपीट होता रहता है, चढ़ता रहता है पानी, ऐसे साइकिल रिपीट होता है। बेसिकली दिस इज लाइक पानी अपवर्ड को अगर कहीं ले जाना हो तो इसके लिए बेसिक है पूरा काम आएगा। हाँ, ऐसी जगहों पे ये काम आएगा जैसे हिली एरियाज। ऊपर हाँ, रिवर के काफी ओके ओके, नाइस। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है वहाँ पे, बिजली का बिल भी बच रहा है। These will have very small ionic sensors, billions of them, billions of lightings, and जो कि सेकंड पार्ट के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, थर्ड ऑब्जेक्टिव